Hello everyone, myself Nagendra Kumar, working as professor in the Faculty of Education, and I am offering this course. Today I am going to deal this lecture meaning and concept of research. हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल है उसमें पहले हम डील करने जा रहे हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, एंड दिस विल डील etymology and basic meaning of research. After the completing this lecture, a researcher or we can say a student can be able to define research in academic terms, recognize key characteristics of research, differentiate between various types of research, understand its significance in academic field and society. चूंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च इज नॉट अ इजी प्रोसेस, बट it may be easier because everyone do day by day research, but they have not understanding that they are doing the research. Therefore we have framed it in a very easier manner. By that anyone can understand what is the research and what is the key characteristics of research, and by that our stakeholders may be able to differentiate between various type of research. So therefore I am going to deal this. The term research comes from the French word recherche, meaning to search again, and generally when we break the research word within research, it means search and search. So that is considered the true search again, and its general meaning is research refers to a systematic, organized and critical investigation aimed at discovering new facts or revising existing knowledge. What knowledge is existing, we can go within a different setup. उसका अपना क्या उद्देश्य है, वो ज्ञान किस तरीके से अपना कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी पूर्ति कर रहा है या उसकी उपादेयता है, उसके लिए साथ ही साथ न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके वेरियस डायमेंशन से कोरिलेट करके हम लोग उस नॉलेज को देखना चाहते हैं। तो इसी के प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं, और रिसर्च इज ए प्रोसेस टू एक्सप्लोर द न्यू नॉलेज. Research refers to systematic, organized and critical investigation aimed at discovering new facts or revising existing knowledge. What is in existence? उसी को हम देखने का प्रयास करते हैं. जो परिदृश्य है आज वर्तमान में वो कितना सुटेबल है, या वो उसको हम बाहर करके दूसरा नया नॉलेज इस कह सकते हैं कि सर्कमस्टांस में ला सकते हैं. तो यहाँ जैसे कि हम एक एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो यहाँ जो वेरियस टीचिंग मेथड्स हैं उनका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं, और बाय दैट विच मेथड विल बी एप्लीकेबल मोर टू एनहांस द पोटेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो देखने के लिए अगर हमें जाना होगा तो हमें एक रिसर्च करना होगा. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि रिसर्च ऑलवेज प्रोड्यूस द न्यू नॉलेज एंड gives us basis for कह सकते हैं कि बेहतर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, बेहतर समझ विकसित करने के लिए, और जो हमारी सोसाइटी है उसको एक अच्छा वातावरण देने के लिए, तो ये हम काम कर सकते हैं. रिसर्च कंप्राइजेस, क्लिफोर्ड वुडी ने डिफाइन किया है, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, formulating hypothesis or suggested solution, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulated hypothesis. क्या हमने hypothesis बनाई और वो जो hypothesis बनाई क्या उसको वो इस समय के लिए suitable है, उसको हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इवेलुएट करते हैं. ये एक जर्नी जो है वो रिसर्च के अंतर्गत आती है, और इसीलिए रिसर्च को हम एक प्रोसेस के साथ जोड़ सकते हैं.
यहाँ देख सकते हैं कि क्रैफोर्ड ने भी डिफाइन किया है कि रिसर्च इज सिंपली अ सिस्टमेटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग employing specialized tools, instruments and procedure to obtain a more adequate solution of a problem. Yes, this is simply a systematic and refined technique of thinking. How we are going to think, हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे किसी भी परिस्थितियों में हम कोई विशिष्ट उपकरण यूज में ला रहे हैं या प्रोसीजर यूज में ला रहे हैं जो किसी समस्या के लिए एक उपयुक्त समाधान हो सकता है। ऐसे ही कर्लिंगर ने डिफाइन किया है कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमेना। यहाँ जब अनुसंधान की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये एक क्रमबद्ध, नियंत्रित और इंद्रियजन क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। जो भी हमने हाइपोथेटिकली प्रोपोजिशन प्रस्ताव डेवलप किए हैं उसको चेक करें दो वेरिएबल्स के बीच में, जो किस तरीके से या कोई नेचुरल जो प्राकृतिक घटना घट रही है वो किस तरीके से आपस में एसोसिएटेड है, किसका कारण किस पे पड़ रहा है, क्या चीज किस तरीके से दूसरे को प्रभावित कर रही है। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल में लिया था कि कौन सी टीचिंग मेथड इफेक्टिव है, और वो टीचिंग मेथड को अगर हम देखेंगे तो टीचिंग मेथड अगर शिक्षण विधि प्रभावी है तो किसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि शिक्षण जब हम कर रहे हैं तो उससे विद्यार्थियों की उपलब्धि प्रभावित होती है। तो शिक्षण विधि को हम जब देखेंगे तो वो विद्यार्थियों की उपलब्धि के संदर्भ में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी कि जो शिक्षण विधियां हैं वो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं या नहीं। तो टीचिंग मेथड्स अफेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, देयरफॉर वी कैन से research is a process by which we can generate the new knowledge. Essential characteristics of research, अगर इसको हम देखें तो बेस्ट एंड कोहन ने जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने रिसर्च की बताई थी उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि रिसर्च में सिस्टमेटिक प्रोसीजर को अपनाया जाए, लॉजिकल अप्रोच यूज में लाया जाए, एम्पिरिकल एविडेंसेस यूज में लाए जाए, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड प्रोसेस। यस, और वो रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो एनीवन कैन बी रेप्लिकेट दैट, एंड साथ ही साथ दैट बी बेस्ड ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि रिसर्च जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम केवल अपने एज्यूम बेस कल्पना बेस नहीं आगे बढ़ते, बल्कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें लॉजिकल अप्रोच के साथ हम जाते हैं। और लॉजिकल अप्रोच जब हम उसमें यूज करते हैं तो उसको आधार बनाकर हाइपोथेसिस बनाते हैं, और साथ ही साथ हम उसको एम्पिरिकल एविडेंस, जो इंद्रियजन कह सकते हैं कि हमारे जो साक्ष्य हैं उनकी सहायता लेकर हम उसको एसेस करने का प्रयास करते हैं जो हाइपोथेसिस हमने बनाई। और जब हम उसको आगे टेस्टिंग के लिए बढ़ते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हम ऑब्जेक्टिव रहें, यानी कि हम उसमें कोई भी अपना बायस, अपना इमेजिनेशन उस पर न थोपें, अपनी विचारधारा न लगाएं। जो हमारी फाइंडिंग्स आ रही हैं, जो टूल्स कह रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि उस जो रिजल्ट्स हैं दैट शुड बी जनरलाइज, वो जनरलाइज होने चाहिए। इसका मतलब कि हमारे जो कथन हैं या जो हमने इवॉल्व किया उसको दूसरे भी रेप्लिकेट करके एसेस कर सकें। और यही रिसर्च की बहुत बड़ी एक ब्यूटी होती है कि इफ एनी रिसर्चर इज प्रोपाउंडिंग द नॉलेज दैट शुड बी वेरीफाइड बाय द अदर्स, वो दूसरे के थ्रू अगर सत्यापित किया जा पा रहा है तो वो एक ऑथेंटिक रिसर्च होगी, और इसके लिए वो रेप्लिकेबिलिटी इसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं तो एक बेहतर रिसर्च के रूप में आ सकती है। हियर एक्टिविटी इज रिटन, आइडेंटिफाई इफ ए न्यूज रिपोर्ट विदाउट वेरीफाइड फैक्ट्स क्वालिफाइज एज रिसर्च और नॉट। तो आप ये देखें कि डेली का डेली न्यूज़पेपर में कई ऐसे समाचार आते हैं। अब हमें देखना है कि वो रियली में रिसर्च है कि नहीं है, रिसर्च बेस्ड है कि नहीं है, वो फैक्ट्स है कि नहीं है। तो अगर फैक्ट्स की बात करनी होगी और सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग उस पर कह सकते हैं कि अनबिलीव
नहीं अनबिलीव करते हैं, अविश्वास वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, इसका मतलब कि हमें उसकी रेप्लिकेबिलिटी की ज़रूरत है, और रेप्लिकेबिलिटी जब अगर सब लोग उसको पा जाते हैं कि दैट्स आर फैक्ट, तो उस पे विश्वास करने लगते हैं। तो इसलिए ये एसेंशियल जो आवश्यक विशेषता है अनुसंधान की, जिसको बेस्ट एंड काहन ने दिया कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर, लॉजिकल अप्रोच, एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड प्रोसेस यूज में आए, एंड उस रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी की गुंजाइश हो, वेरीफाइबिलिटी उसके रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं उसको वेरीफाई किया जा सके, और वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो, तो दिस विल बी अ गुड रिसर्च। हम अगर सिंपली कहें कि जो कॉन्सेप्ट है रिसर्च का, उसको देखें कि रिसर्च इज अ डेलिबरेट एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू एक्वायर न्यू नॉलेज। कब बेस्ट एंड काहन ने भी इसको इसी तरीके से देखा कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो उसका मोटिव ही है कि टू एक्वायर न्यू नॉलेज, और उस जो नया ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो किसके थ्रू हो, ऑर्गेनाइज एफर्ट के थ्रू हो, एक सिस्टमेटिक एफर्ट। सेकेंड डेफिनेशन जो रेडमैन एंड मोरी की है, रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। जस्ट लाइक बोथ एक जैसा ही है, केवल टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज हो रही है दैट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट, हम अगर रिसर्च का जो अल्फाबेट्स हैं, अगर उसके एक्सपेंशन को देखें तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि रिसर्च क्या कम्युनिकेट करता है। तो रिसर्च जो वर्ड है वो अपने आप में जो अल्फाबेट्स इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज द RESEARCH। और हम दिस इज माय पर्टिकुलर डेफिनेशन आई हैव फ्रेम्ड, और ये आप इसको समझ सकते हो और इस तरीके से देख भी सकते हो कि ये जो टर्म हमने इसमें यूज किए हुए हैं ये अपने आप में एसोसिएटेड है, और इससे एक मीनिंगफुल डेफिनेशन भी बन सकती है कि रेशनली इवॉल्व्ड सॉल्यूशन इम्प्लाइंग एडवांस मेथड, टूल एंड टेक्निक्स। जब भी रिसर्च हम करेंगे, यानी कि वो रिसर्च जो होगी उसका जो प्रॉब्लम हमने फ्रेम किया उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो रेशनली इवॉल्व सॉल्यूशन होगा, उसमें रैशनैलिटी होगी, और वो सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा, और वो निकल कर आएगा ऑन द बिहाफ ऑफ इम्प्लाइंग एडवांस मेथड, टूल्स एंड टेक्निक। क्योंकि नॉलेज जनरेशन ही हमारा मोटिव है रिसर्च का, और रिसर्च से जब हम नॉलेज जनरेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी भी सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने के लिए ही आता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रैशनली इवॉल्व सॉल्यूशन इम्प्लाइंग एडवांस मेथड, टूल्स एंड टेक्निक। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो तार्किक रूप से उत्पन्न किया गया होगा, और उसमें जो उन्नत आज के वर्तमान के उन्नतशील विधियां हैं रिसर्च की, उपकरण हैं और तकनीकियां हैं, वो प्रयोग में लाकर अगर किया जा रहा है तो वो रिसर्च बेहतर होगी, और वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ इसमें जो RCH वर्ड यूज हैं उनको फिर देखें तो फिर हम एक बार रिसर्च की तरफ मूव कर पाएंगे। रीजजिंग आर रिफाइनिंग द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट हमें मिले हुए हैं पहले से उनको हम परिशोधित करते हैं, रिसर्च। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग है उनको रिजर्च करते हैं। तो यहाँ पे R वर्ड अल्फाबेट C देता है, और C क्या हमने पाया, किस तरीके से पाया, उसको हम डिपिक्ट करना चाहते हैं इन कंट्रोल कंडीशन। क्योंकि जब वेरीफाइबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, सत्यापिता की तरफ हम मूव करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो स्थितियां हैं अगर वो सेम होंगी तो शायद हम वो उसी तरीके का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने सेम कंडीशंस में बात नहीं करी तो शायद हमारी फाइंडिंग्स जो होंगी वो डिस्टर्बिंग फाइंडिंग्स हो सकती हैं, और हमारा जो रिजल्ट है वो उसी तरीके से नहीं आएगा। देयरफॉर अगर कोई वेरीफाई करने के लिए जा रहा है तो कंट्रोल कंडीशन में जाए। और साथ ही साथ H वो जो अल्फाबेट यूज हो रहा है दैट रिप्रेजेंट ऑनेस्टली रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट कोई भी कैसा भी जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमारा बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि वेरीफाइबिलिटी, और उसमें ऑनेस्टली हमारा जो कुछ भी है हमने जो पाया उसको रिपोर्ट अगर करते हैं तो ये रिसर्च की एक बेहतर
क्वालिटी होगी, उसके बाद हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस फिर देख सकते हैं कि अगर रिव्यू बता रहे हैं कि ये रिसर्च का रिजल्ट डेविएट कर रहा है, तो डेविएट कर रहा होगा क्योंकि सरकमस्टांसेस बदल गए, सिचुएशन बदल गई है। तो देयरफॉर रिसर्च का पर्पज ही है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस टू गेन न्यू नॉलेज। और यहाँ कह सकते हैं कि रिसर्च जब भी की जाती है तो वो रिसर्च हमेशा नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सहायक होती है। और अब अगर हम बात करें कि जनरल फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिसर्च जो है किस तरीके से काम करता है। और एक डेफिनेशन अगर जोरा नेले हस्टन की देखें, रिसर्च इज फॉर्मलाइज क्यूरियोसिटी एंड इट इज पोकिंग एंड प्राइंग विथ ए पर्पस। यस, कभी भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसका एक पर्पज होता है, लेकिन उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, पर्पज है, तब तो आप उसके लिए मूव ऑन करते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ देखें कि 4 टर्म्स हमने यूज किए हैं, क्यूरियोसिटी, सस्पिशन। ये दोनों जो अपने प्लेस हैं वो चेंज हो सकते हैं। सस्पिशन में भी फर्स्ट एंड क्यूरियोसिटी में भी सेकेंड, और क्यूरियोसिटी में भी फर्स्ट एंड सस्पिशन में भी सेकेंड। नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, येलोइस मटेरियल क्रिएट्स कंफ्यूजन। कोई अगर धातु है और वो पीले रंग का है, तो वो अगर कहीं गिरा हुआ पड़ा है तो आप देखोगे कि वो आपके दिमाग को में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। व्हाट इज दैट? क्योंकि वो पीला धातु जो है वो हमारे यहाँ सोना से कंपेयर हम लोग कर लेते हैं, और वो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वो कहीं सोना तो नहीं है। और सोना है कि नहीं है, उसको जानने के लिए वी स्टार्ट सर्चिंग द रियलिटी बिहाइंड इट। हम उसको जानने के लिए प्रयास शुरू करते हैं, और उसके लिए वेरियस हम कह सकते हैं कि एफर्ट लगाते हैं, एंड द स्टेप्स वी अप्लाई फॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एज रिसर्च प्रोसेस। तो जब आपके दिमाग में उस पीले धातु को देखकर क्यूरियोसिटी आई, और क्यूरियोसिटी जब आया तो आपके दिमाग में संदेह आया, सस्पिशन, दिस इज गोल्ड और ओनली जनरल मेटल। और जब ये दोनों के बीच में टकराव होने लगा, इसका मतलब कि हमारे दिमाग में एक मानसिक अशांति उत्पन्न हुई, मेंटल अनरेस्ट। और मेंटल अनरेस्ट गिव्स अस डायरेक्शन फॉर रिसर्च। क्योंकि जब तक हम हमारी जिसे कहते हैं कि मानसिक अशांति नहीं उत्पन्न होती, तब तक हम रिसर्च के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। एक समस्या हमारे लिए होना जरूरी है, और वो समस्या जो यहाँ क्यूरियोसिटी और सस्पिशन के बीच में वो पीले रंग की धातु वो थी, वो क्या है, व्हाट इज दैट, उसी के संदर्भित हम आगे बढ़ते हैं और उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च का पाथ हम अपनाते हैं, और ये यहाँ से रिसर्च शुरू होती है। तो ये जनरल फिलॉसफी है कि क्यूरियोसिटी अगर आपके दिमाग में है, आप जागरूक किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, तभी रिसर्च पॉसिबल है। और कहीं जो दो चीजें अगर दिख रही हैं, जैसा कि हमारा रिसर्च का एक कह सकते हैं कि हम लोग जहाँ से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक, तो वहाँ जब दो फाइंडिंग्स संदेह की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, तो भी हम आगे हमारे दिमाग में होता है, एक रिजल्ट फाइंडिंग बता रही है कि दिस इज दिस, एंड दूसरी बता रही है कि दिस इज दैट। तो वहां पे हम व्हाट इज द रियलिटी, वास्तविकता में वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हमारा मेंटल अनरेस्ट होता है और हम मूव ऑन करते हैं रिसर्च के लिए। तो दिस इज द जनरल फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। वी कैन सी द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। एलिमेंट्स मीन्स इसके जो बेसिक 3 तत्व हैं, बेसिक आइडिया, मैटर एंड लिविंग बीइंग्स, इन्हीं 3 के चारों तरफ कह सकते हैं कि हमारी पूरी रिसर्च घूमती रहती है। किसी भी चाहे वो साइंस की रिसर्च है या बिहेवियरल एंड सोशल साइंस की रिसर्च है। तो यहाँ क्योंकि आइडिया, थॉट, किसी भी रिसर्च के लिए विचार बहुत आवश्यक है, और जब हमारे दिमाग में विचार आते हैं तो वो विचार ही हमें आगे मूव ऑन करने के लिए, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, तो ये विचार हमारे दिमाग में आए, यानी कि दैट में बी क्वेश्चंस,
या दैट में बी स्टेटमेंट, वो जो विचार हमारे दिमाग में, क्या यह प्रणाली उपयुक्त है, वो सोचा हमने और उस पे हमने हाइपोथेसिस फ्रेम करी या उसको एजम्पशंस बनाए और उस पे काम मैटर जो भी, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सामग्री है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या और भी जो से सीटिंग अरेंजमेंट है, मार्केट के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, या दूसरे फील्ड में सोशल साइंस की हिस्ट्री के फील्ड में देख सकते हैं कि हिस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं या ज्योग्राफी के संदर्भित जो इक्विपमेंट्स हैं वो टीचिंग में कैसे हेल्पफुल हैं, या कह सकते हैं कि डाटा गैदरिंग में वो टूल्स कैसे हेल्पफुल हैं, और साथ ही साथ लिविंग बींग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस एंड प्योर रिसर्चेज, जिसे साइंस की रिसर्चेज कहते हैं, वो भी एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स पे हैं। लेकिन हम लोग जब सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्च की बात करते हैं तो हमारी रिसर्चेज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पे बेस होती हैं। तो एनी टाइप ऑफ रिसर्च रिवॉल्व अराउंड द अबव मेंशन थ्री एलिमेंट्स। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिसर्चेज होती हैं इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसमें विचार मुख्य होता है, सामग्री होती है और लिविंग बींग्स जो हमारे हम जीव हैं उन्हीं के सापेक्षिक हम रिसर्च करते हैं। तो जनरल टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जनरली तीन तरीके की रिसर्चेज हैं देखी जाती हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि अभी आउटपुट बेस्ड भी होती हैं ये। तो बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च कंडक्टेड टू डेवलप थियरीज, जनरली जो न्यू नॉलेज को इवॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है दैट कैन बी कंसिडर अंडर द बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। जैसा कि एजुकेशन के फील्ड में आप देखें कि जीन पियाजे ने थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था, इसको हम लोग बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। या इसी तरीके की जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एकदम न्यू नॉलेज इवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च एड्रेस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, न्यू वेज टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर फील्ड्स। जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और 3 से 4 साल के अंदर हम उसको एक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। ये डिग्री ओरिएंटेड भी हो सकती है, और जनरली जो हम काम करते हैं सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्च में ये अप्लाइड रिसर्च ही होती हैं। और बेसिक एंड फंडामेंटल जनरली साइंस की रिसर्चेज हैं, लेकिन हर फील्ड में अपनी थियरी एग्जिस्टिंग होती हैं, नई नॉलेज आती हैं, वो थियरी के रूप में काम करती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्चेज में हम बेसिक रिसर्चेज नहीं करते हैं, इसलिए एक एग्जांपल यहाँ जीन पियाजे का लिखा हुआ है। थर्ड वन इज द एक्शन रिसर्च, एड्रेस द इमीडिएट प्रॉब्लम, जो तुरंत अगर समस्या हमारे सामने आ रही है और तुरंत हमें उसका सोल्यूशन निकालना है तो दैट कैन बी रिजॉल्व विद इन डेज, वीक्स और मंथ्स। जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या आ गई, डिसिप्लिन क्लास में डिसिप्लिन से रिलेटेड समस्या आ गई, या मार्केट रिलेटेड इश्यूज जो हमारे सामने आ गए, तो उनको देखने के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च के साथ जा सकते हैं। हम देखें कि ये रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट अपनी रखता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च की स्लाइड में अगर हम देखें कि किस तरीके से रिसर्च अपनी महत्व शो करता है, तो उसमें देखें कि आप सबसे पहले रिसर्च जो है उसका मोटिव ही है नॉलेज एक्सपेंशन और नॉलेज एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ वो किसी भी फील्ड के नॉलेज को अगर आप इन्हांस करना चाह रहे हो या उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो उसके लिए रिसर्च के साथ ही हम जाते हैं। और हर फील्ड में आप देखोगे उनका रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे कि वो फैशन डिजाइनिंग में अगर आप देख सकते हो या किसी भी जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, उनका अपना सेक्टर है। डे बाय डे दे आर इन्हांसिंग। साथ ही साथ हम अपने यहाँ अगर बात करें कि हम लोग कभी हम केवल ऑफलाइन मोड की बात करते थे और अब ऑनलाइन मोड में बात कर रहे हैं, तो ये स्वयं प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़ रहे हैं, ये नॉलेज एक्सपेंशन ही है। जब नॉलेज एक्सपेंशन होता है तो पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट होती हैं, करती हैं स्टेट को और नेशन को करने में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है,
उसके साथ रिसर्च की ही भी जो भी तकनीकी उन्नति हो रही है। सोशल रिफॉर्म्स, यस, जैसे जैसे नॉलेज हमारे सामने आ रहे हैं, नए ज्ञान आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ सामाजिक क्रांतियाँ भी हुई हैं और उससे सामाजिक जो ताना बना है वो भी सुधरा है। तो सोशल रिफॉर्म्स, जैसे कि सती प्रथा कभी थी, जाति प्रथा थी, तो ये सारी चीज़ें टूटी हैं और रिसर्च ने उनको तोड़ा है कि दीज आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये मिथ्स हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। और हर रिसर्च का मोटिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी प्रॉब्लम के ही इर्द-गिर्द सारी चीज़ें चलती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द मेजर एस्पेक्ट। तो ये इनके क्षेत्र में इनसे एसोसिएट करके हम रिसर्च की इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं और सारे सेक्टर्स जहाँ भी हमें बात करना है, उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ रिसर्च अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और कह सकते हैं कि फाइनली रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। रिसर्च जब भी होगी वो सिस्टमैटिक होगी और इसके साथ की फीचर जुड़े हुए हैं कि एम्पिरिकल होती है। ये सोशल साइंस की रिसर्च मेजरली इंद्रियजन होती है। वैसे किसी भी क्षेत्र की रिसर्च एम्पिरिकल ही होती है, साथ सिस्टमैटिक होती है। रिसर्च अगर हम जब करने जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का मोटिव बेसिस ही है साइंस। साइंस इज द सिस्टमैटिक क्यूरियस इंक्वायरी। तो यहाँ सिस्टमैटिक क्यूरियस इंक्वायरी की जब बात करेंगे तो साइंस के साथ जाएंगे और साइंस ही सिस्टम को देता है। और साथ ही साथ जब रिसर्च की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो भी रिसर्च की जाए। सब्जेक्टिविटी कैन बी कंसीडर बिकॉज सोशल साइंस रिसर्च जो है वो सब्जेक्टिविटी के साथ हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को हम कंसीडर करें, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखें। एंड ये सिग्निफिकेंस इसका एजुकेशन में है, सोसाइटी के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है। तो जहाँ भी आप इसको एसोसिएट करना चाहेंगे, वहाँ पे पाएंगे कि जिस भी सेक्टर में हम काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ अगर डेवलपमेंट की आप बात करना चाह रहे हैं, तो डेवलपमेंट मीन्स गो विद द रिसर्च, यानी कि रिसर्च के साथ हमें जाना होगा, रिसर्च को समझना होगा। तो रिसर्च जब हम करेंगे तो यानी कि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए और दैट रिसर्च इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। और कह सकते हैं जो लग्जरियस लाइफ की बात साइंस करता है, वो भी जो बेसिक इसके 3 एलिमेंट्स हैं, आइडिया, मैटर एंड लिविंग बीइंग, उन्हीं के तीनों के इर्द-गिर्द घूमता है। तो यहाँ जो हम लोगों ने आज ये डील किया, उसमें देखा कि जो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च है, उस टॉपिक के अंतर्गत एक बेसिक्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है। और आप इस टॉपिक के साथ जो क्वेश्चंस कुछ हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप देखें कि कुछ रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के बीच में डिफरेंशिएट करना भी आप देख सकते हैं। एंड व्हाई ऑब्जेक्टिविटी इज एसेंशियल इन रिसर्च, ये अगर आप देखेंगे तो शायद रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ इस लेक्चर से एसोसिएटेड ये क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे हैं और इस लेक्चर को जब आप थोड़ा सा अध्ययन करोगे, कई बार रिपीट करके आप सुनोगे, तो आप पाओगे कि रिसर्च एक बड़ा ही सरल सी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ जाना होगा और सिस्टमेटिक प्रोसेस से जाएंगे तभी ही हमारी फाइंडिंग्स जो होंगी वो ऑथेंटिक होंगी और हमारे द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को दूसरे लोग भी उस पर विश्वास कर सकेंगे। तो इसके लिए आप कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर आप सोचें कि कैन यू थिंक of an area in your daily life where applying a research approach might help solve a problem। चूंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने कहा था कि इसका यूज कर सकते हैं, तो रिसर्च हम सब डेली के डेली कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि हमें उसमें एक प्रोसेस के साथ जाना होगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ जाना होगा, तो वो रिसर्च के रास्ते पे आएंगे। और इसीलिए जब रिसर्च के रास्ते से हम चलेंगे तो हमारी जो समझ होगी किसी भी समस्या के प्रति वो एक अच्छी होगी और हम सही समाधान के प्रति जा सकेंगे, सही समाधान निकाल सकेंगे। और इन रीडिंग्स को आप पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ तक हमने पहला टॉपिक जो था हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च उसको कवर किया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।